Yes. Good afternoon, all of you. This is Dr. Ruchi Shirurkar, Director of Pediatreat, Children and Their Fittest. Today, the drug that I'm going to take is very, very commonly used. It's the biggest polycrest in homeopathic practice. But I'm going to tell you the angle from a child, from a pediatric point of view, how to use this drug, right? So the drug that I'm discussing today is Natrimure. We all know a lot about Natrimure, but I'm going to give you some very, very important clinical tips that you can use it in your practice, right? I'll give it for adults also and for children also, but primarily I will talk about pediatric because that is my main forte, right? So when a Natrimure child comes to the clinic, the child is always very proper, well-dressed, well-behaved. There is a rubric, discipline easy. मतलब आप Natrimure बच्चों को आराम से discipline कर सकते हो, right? So वैसे फालतू कूदते काटते जैसे tuberculinum, tarantula आते हैं वैसे नहीं आते. They would always, there's a rubric proper to, obedient, you know. So they will always come with the parents, well-behaved, sit properly in the ऐसे कूदते काटते खेलते कूदते नहीं आएंगे आपके पास. सो द मोमेंट द चाइल्ड एंटर्स यू कैन अ ग्रुप ऑफ रेमेडीज शुड प्ले इन योर माइंड कि भाई ये तो खेलता हुआ आ रहा है, ये लैटिसेस है या तो ये बड़बड़ करता हुआ आ रहा है. सो सल्फर कैसे आएगा, नाट्रियम कैसे आएगा. सो दे विल सिट प्रॉपर्ली इन द चेयर एंड से यस. दूसरी बात, Natrimure कैसे क्या क्या अभी बैठ गया आके, राइट, प्रॉपर्ली आया, कूदता काटता खेलता हुआ नहीं आया, अब बैठा. Natrimure उस बैठने के बाद उसको लुक्ड, अवर्जन टू बी लुक्ड एट. वो नहीं चाहता कि अटेंशन उसके पास आए. वो नॉर्मली पेरेंट्स के पास देखेगा ताकि आप पेरेंट्स से पूछिए, राइट. Natrimure को अटेंशन नहीं चाहिए होता. तो पिक्चर अवर्स टू बी टेकन, लुक्ड एट, इवेडिंग द लुक ऑफ अनदर पर्सन. अगर आप उनकी तरफ देखें तो वो अपना चेहरा मोड़ लेते हैं. Looked at, evading, spoken when, जब आप जैसे आप उनसे बात करने जाएंगे तो वो इधर उधर मतलब अपना चेहरा मोड़ लेंगे. तो Natrimure बच्चा कभी भी नहीं चाहता कि क्लिनिक में during the clinic case taking the attention is on the child. So that is a very very important tip. Antics playing के rubric में शायद Natrimure नहीं है because the attention that they don't want. दूसरी बात, sometimes the child answers looking towards the wall. There is a rubric like that, answering looking towards the wall. तो आपसे पीठ करके वो आपको जवाब दे रहा है या answering hesitantly. Okay, so this is a very important thing that he doesn't want to be the center of attraction. He doesn't want to be the point of attraction in the clinic. तो वो ज़्यादा चाहेगा कि भैया मेरी तरफ मत देखो. आपको ऐसा फील होगा कई बार Natrimure बच्चे में कि इनको जबरदस्ती लाया गया है क्लिनिक पे. That is, they don't want to come, right? एक रूब्रिक है अवर्जन फर्स्ट टू, मतलब उनको ज्यादा ताम झाम और अरे मेरा बच्चा, देयर इज माय वन ऑफ माय वेरी क्लोज family friends, उनकी बेटी is typical Natrimure and the mother is phosphorus. So she would like, oh, hug you, kiss you. She's like, don't do this, don't, that over attention, over caressing, showbaji, flattering, they don't like that, right? So aversion first to, फालतू का तमाशा मत करो. That is the rubric, aversion first to. Okay. फिर there are some singular rubrics in Natrimure that I would tell and I'll explain just now. एक मैंने आपको अभी बताया, aversion first to. दूसरा है confiding, people confide in him men. Natrimure के लोग आके आपको हमेशा ये बात बोलेंगे कि there are so many people who tell me their secrets, कुछ पेशेंट थे जो आके मुझे बोलते थे, I have helped so many people and there are so many people who trust me and tell me their secrets. So this is a single of Natrimure, confiding, people confide in him because Natrimure खुद secretive है. तो even बच्चों के जब group of friends होते हैं ना, you will understand this is one child जिसको सब जाके अपनी बात बता देते हैं, so people confide in them, right? क्योंकि वो खुद secretive होते हैं, वो कभी भी जाके इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं करते. Discipline easy too, that is what I tell. टिमिडिटी होती है उनके अंदर, शाय होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
they are not very outgoing, very verbal about their emotions, though it is emotions predominated by intellect. They are basically emotional people. Children भी बहुत emotional होते हैं, पर वो जल्दी से अपने emotions share नहीं करते. Parents भी आके बोलेंगे यार इसको क्या परेशानी हो रही है, बताता ही नहीं है, बताए तो हम help करेंगे ना. He doesn't want to talk about it. And normally they'll, hide their emotions. I had done my one course from ICR, एक Institute of Clinical Research करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो वहां पे नेचुरली ना लोग आंखों से पकड़ लेते थे कि मतलब ड्यूरिंग केस टेकिंग आंखों में आंसू आते हैं पर आंखें मतलब आंसू गिरते नहीं हैं. दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस रूब्रिक, वीपिंग कंट्रोल्ड. मतलब इतना इमोशंस रहते हैं, इतना हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ इतना रहता है पर वो झलकता नहीं है ना. So that is natural. Even in kids you can see कि अगर झगड़ा हो गया या parents, they are very very sensitive about parents की अगर fight हो रही है, so sensitive discords between parents or ailments from discords between friends, तो उनको बहुत फर्क पड़ता है. पर वो इतना जाके एक आधा होगा मम्मी मत झगड़ो या पापा आपकी गलती है ऐसे बोलेगा, पर नेचुरली वो दबा के रखेगा, वो इमोशंस में सप्रेस्ड रहेगा, बहुत ज्यादा ग्रीफ रहेगी बट सब अंदर रहेगी, अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड उसको बहुत सालों तक वो बातें याद रहती हैं, बहुत सालों तक. ओल्ड ग्रीफ, ओल्ड डेथ ऑफ लव्ड वंस का जो ग्रीफ है वो भी बहुत टाइम तक रहता है. तो बहुत टाइम तक चलने वाला दुख, या पेरेंट्स आके बोलते हैं इसको वो पुरानी बात, मैंने एक थप्पड़ मारा था इसको, या घर में कोई आया था उस समय इसको डांटा था, 6 साल बाद इसको पूरी बात याद है. और बात याद सिर्फ मेमोरी की बात नहीं है, उतना ही दुख, उतना ही दर्द और उतने ही आंसू आंखों में आज भी दिखेंगे. तो वो नेट्रम है. तो आपको वो नेट्रम की इमोशनल सेंसिटिविटी, वो दर्द, वो उनके मन में घर कर लेता है. ब्रूडिंग ओल्ड डिसअपॉइंटमेंट्स ओवर, dwells on past disagreeable occurrences, नाइट, मिडनाइट, ग्रीफ ओवर, ये उसके सब रूब्रिक्स हैं. सो बच्चे भी ना बहुत टाइम तक एक दुख अपने मन में रखते हैं, बहुत एक टाइम तक वो दर्द अपने मन में दबा के रखते हैं. तो नॉर्मली तो वो लाफ करेंगे या दे वुड स्माइल, दे वुड नॉट इजिली क्राई. बच्चे भी सबके सामने नहीं रोते. जैसे मैं जो अपने फैमिली फ्रेंड्स की डॉटर का एग्जांपल दे रही हूँ, उसको लग भी गई थी एक बार, वी हैड गॉन टू सम प्लेस और उसको लग गया, वी वर सर्चिंग हर, तो वो सोफे के पीछे जाके रो रही थी. Weeping alone when? Because it is beyond their dignity, that I am crying in front of others. तो अकेले में, और फिर अगर उसके मम्मी बोले ओहो बेटा लग गई आपको, क्या हो गया बेटा, मत करो ना, डोंट आस्क मी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आई डोंट लाइक इट. That was the child's reaction. That don't give me that consolation. Don't give me that sympathy. I don't like it. Don't create that fuss. आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे, इवन अडल्ट्स, आपको आसपास दिखेंगे कि जिनको बहलाना, पुचकारना, प्यार करना, सबके सामने हग करना, किस, ऐसा नहीं है कि नेचुरल म्यूर को अफेक्शन नहीं चाहिए, अफेक्शन चाहिए, बट बोल कर नहीं चाहिए या दिखावा नहीं चाहिए. आई वुड से दैट वे, है ना. So you will see that children are mature and obedient and very proper, well dressed. एक rubric भी है, needs affection but will not ask. बोल के भी नहीं चाहिए और दिखावा भी नहीं चाहिए. ठीक है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये अडल्ट्स में मैंने बहुत देखी है, बच्चों में तो मैंने नहीं देखी, कि जब आप नेचुरल म्यूट से कोई इमोशनल बात करो ना, मैंने 5-6 पेशेंट्स को सिर्फ इसी रूब्रिक पे भी प्रिस्क्राइब किया है. तो वो जब अपने कोई लाइफ का इंसिडेंट्स बता रहे हैं, सपोज एक अफेयर था और फिर वो ब्रेक हो गया, या फिर हस्बैंड की डेथ हो गई, या फिर कोई डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में, तो वो ना अपने इमोशंस भी ना आंखें बंद करके बताते हैं, एज इफ दे आर लिविंग दैट अगेन. सो आई हैड अ पेशेंट हु यूज्ड टू, मैंने उससे कुछ भी पूछती थी तो वो बोलते थे दैट वाज, वो आंखें बंद करके नरेट कर रहा है
उसका जो भी दुख था लाइफ में, सो दे क्लोज दे आईज, एक टॉकिंग आईज क्लोज विद, यू राइट डाउन दिस रूब्रिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आंखें बंद करके बात करते हैं। आपको हर नैट्रम नहीं मिलेगा, बट ये छोटे छोटे जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ नैट्रम के, वीपिंग कंट्रोल्ड, टॉकिंग आईज क्लोज विद बी, लुक इवेडिंग, ये आपको दिमाग में रखने हैं नैट्रम के लिए वेरी प्रॉपरली। वो खेलते कूदते नहीं आएंगे, ठीक है। कॉन्सलेशन, सिंपथी, अगर मामा बोले क्लिनिक में बच्चे सपोज आया, उसको बहुत पेट दर्द हो रहा है और मामा बोले इसको ना बहुत पेट दर्द हो रहा है बेचारा, तो ऐसे मामा को लुक देगा कि व्हाट इज दिस बेचारा, यू नो, दे हेट टू बी पिटीड, फियर पिटीड ऑफ बीइंग, उनको तरस उन पे कोई खाए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यू नो, कि आप मेरे पे तरस। क्या होता है व्हेन वी स्टडी ड्रग, जैसे आप लोग अभी रूब्रिक रख रहे हैं, साइलेंट ग्रीफ है, ये है, बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट हाउ यू विल पिक अ चाइल्ड और एन अडल्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चिल्ड्रन इन योर क्लिनिक, राइट। वो ये नहीं आके बोलेगा अरे यार मैं तो डिग्निटी में हूं, यू नो, आई एम डिग्निफाइड. The child will not say that. So how you are going to pick it? You may know 100 rubrics. That is what I tell people who are in my group or doctors who are learning from me, that you may know 100 rubrics, but what is important is whatever the child is doing in that 5 minutes, you pick that. You understand what it means, you know. आंखें बंद करके कौन लोग बोलते हैं, you know, या अपने ऊपर अटेंशन उनको नहीं चाहिए. ये सिंपल सिंपल चीजें हैं दैट यू हैव टू पिक इट इन योर क्लिनिक एंड प्रिस्क्राइब. ओके, तो कॉन्सलेशन, पिटी, अगर मम्मा बेचारा बेचारा करके बात कर रही हैं या आजू बाजू के फ्रेंड्स या कोई भी, उसको नहीं अच्छा लगता, या बेटा ठीक हो जाएगा, दे डोंट लाइक सिंपैथी, दे डोंट लाइक कॉन्सलेशन. किसी के सामने रोना नहीं पसंद करेंगे, अकेले बैठ के रोना पसंद करते हैं, बहुत ही इंट्रोवर्ट एंड रिजर्व्ड होते हैं. सो नॉर्मली आप सोचो कि अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, रिजर्व्ड है, अपने इमोशंस इजीली नहीं शेयर करता, तो उसको क्या चीजें पसंद होंगी? what will be the hobbies or liking? They would love animals, they would love pets, they would love art, painting, you know. म्यूजिक अच्छा लगेगा, सैड म्यूजिक उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जैसे हम राही जैसा, यू नो, कि वो जो म्यूजिक है वो भी उसी दुख में है और मैं भी उसी दुख में हूँ, राइट. सो पेंटिंग अच्छे, डिजायर्स फ्लावर्स, यू नो, फूल अच्छे लगेंगे. ये सब सॉफ्ट इमोशनल चीजें हैं विच अ नैट्रम कैन रियली फील, यू नो. अगर आप नैट्रम की पेंटिंग्स भी देखें तो पेंटिंग ऐसे या कुछ भी क्रिएटिव आप उनका देखें तो ऐसे फ्री फ्लोइंग नहीं होगा लाइक अदर ड्रग्स लाइक लैक्सेस और समथिंग. There's a patient of mine, she sends me the drawing and there is always a lock or a latch in that painting also, you know. So you can understand how closed these people are. Even the paintings show that there is a closed person inside. There's a lot of closed emotions. Are you all understanding? So that is important. So normally क्या होगा, they would laugh. सपोज कोई अडल्ट है या इवन बच्चा है तो वो हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, बट मैं कई बार क्या करती हूँ, पेरेंट्स को अगर मुझे ऐसा सेंस हुआ कि यू नो देयर इज समथिंग beneath this, and I send the parents, and I don't show a lot of sympathy. I just, you know, just empathy probably, and I would just ask, and then हंसते हंसते वो बच्चे रोने लग जाते हैं, और जब रोते हैं then they really sob, ऐसे तो leading to hysterical weeping and sobbing and shaking and spasm. इतना जोर से रहते हैं क्योंकि इतना कुछ उनके अंदर भरा हुआ रहता है. Are you all understanding? That kind of emotions है. कैलकेरिया की तरह वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है. They wanted to be independent. एंजाइटी डार्क है, पर उन्हें स्ट्रेमोनियम जैसी लाइट नहीं चाहिए. एक रूब्रिक है, लाइट डिजायर फॉर कैंडल लाइट. नैट्रम्यूर में थोड़ी सी लाइट चाहिए, ओवर सिंपैथी नहीं चाहिए, ओवर कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए. वही मैंने बोला ना, अफेक्शन चाहिए पर उनको पूछना भी नहीं है और ओवर दिखावा भी नहीं चाहिए, फस भी नहीं चाहिए. तो आपको ऐसे लोग क्लिनिक में समझने पड़ेंगे, यू नो.
उनको एडमोनिशन भी नहीं पसंद आता जब मम्मी पापा बोलते हैं ना, जैसे पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉमनली दी गई है, बिकॉज डिल्यूजन रेस्ट व्हेन लुकिंग इनटू द मिरर में नेट्रोम्यूर है कि उनको लगता है कि आई एम लुकिंग रियली बैड, दैट इज़ वाई पिक्चर अवर्स टू बी टेकन, सेंसिटिव टू मिरर्स, है ना। तो उनको अगर मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा मुल्तानी मिट्टी लगा लो, पानी ज़्यादा पिया करो, उनको नहीं अच्छा लगता। एडमोनिशन, एग्रीवेट, सलाह नहीं चाहिए, नसीहत नहीं चाहिए, तो काइंडली इवन अगर बहुत प्यार से भी बोला जाए, बेटा यार रात को मुंह धो लिया कर ना, दिन भर, they don't want, they don't like. So imagine a person, आप कितना भी dignity बोलें, but I feel that you have to understand the child or an adult when the person comes in your clinic, and how will you understand when the parents say कि नहीं ध्यान रखते और बोलो तो इसको अच्छा नहीं लगता है। कुछ अगर अपन समझाएं, कितना भी प्यार से इसको समझा लें, she doesn't like, इसको बोलें कि अरे बेटा ठीक हो जाएगा, तो भी नहीं पसंद है। आप समझ रहे हो ना, कॉन्सोलेशन चाहिए, ना सिंपैथी चाहिए, ना पिटी चाहिए, ना नसीहत चाहिए, राइट। उसको लगता है मैं हूं, मैं कर लूंगा, आई विल मैनेज, दैट इज द काइंड ऑफ रिएक्शन, जैसे आई एम इंडिपेंडेंट, आई विल सी व्हाट इज हैपनिंग विद मी, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि बहुत इमोशनल होते हैं, तो एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड बीइंग, सेक्सुअली अब्यूज्ड बीइंग, नेग्लेक्टेड बाय पेरेंट्स, बाय मदर, बाय फादर, रिप्रोचेस, कॉन्ड, वो तो सब है ही, राइट। दे आर वेरी हेल्पिंग, दे आर बेनिवोलेंस में है, सिंपैथी में है, दे विल हेल्प अदर्स, ऐसा नहीं है, बट अनफीलिंग, हार्ड हार्टेड मे बी। टुडे ओनली समवन आस्क्ड मी, सो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन कि I had explained coquettish too much and coquettish not enough in one of my group. So people ask me that there are almost same remedies, there can always be a polarity, and a remedy travels from one state to another. So you can always see both rubrics, like delusion wealth भी है और delusion poor भी है belladonna में, और independent भी है और dependent भी है, या इन वेरियस ड्रग्स। तो पॉकेटिश टू मच और ना, ऐसे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मच सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चिल्ड्रन भी है, और ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हियर आई विल डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑल्सो फॉर यू ऑल। ड्यूटी क्या होता है? हम ड्यूटी पे जाते हैं, राइट। आज मेरी 9 से 5 की ड्यूटी है, तो ड्यूटी वो होती है जो प्रोफेशनली या जो वेल नोन है कि मेरे को भैया 5 बजे तक ऑफिस में ना मेरी ड्यूटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल होती है। मेरे को लगता है कि मेरे माँ बाप को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। I may be a girl or a boy, or I may have 5 siblings, or I may not have a sibling. So this is my responsibility. This जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है या जो आपके अंदर से आ रहा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ड्यूटी जो है वो डिसाइडेड है। This is your basic duty, to earn, or probably to go and do a job, और 9 से 5 तक या इतना काम करना तो मेरी ड्यूटी है। सो आप समझ रहे हैं इसमें डिफरेंस क्या है? सो there are so many of the rubrics which are closed, and you have to understand the difference. Yes, mannish girls is very good. The girls who dress up like boys, tomboyish जो हम बोलते हैं girls को, that is natromute. But is all, अब मैं यही बोलूँगी, don't make these all as a fixed idea कि आँख बंद करके बात नहीं करी तो नाट्रम नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये जो पॉइंटर्स दिए हैं कि वो हंसते खुलते खेलते नहीं आएगा, प्रॉपरली बैठेगा, वेल ड्रेस्ड होगा, प्रॉपर होगा, ओबीडियंट होगा, या फिर आंख बंद करके बात करेगा, या फिर लुक इवेट करेगा, या दीवार की तरफ, ये सब आपको एक केस में नहीं मिलने वाला है। या आपको अलग अलग केस में पिकअप कर सकते हैं आप, कि वो कैसे बात कर रहा है, वो कब रो रहा है। वीपिंग टेलिंग सिकनेस, हाइड करेगा वीपिंग कंट्रोल्ड, आपको दिखेगा आंखों में आंसू भर गए हैं, बट आंसू झलकते नहीं हैं, और झलके भी तो ऐसे, मैं बोला ना, आंखें देख के लोग नाट्रम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, right? So when they are in the clinic, they are little awkward, they are biting their nails, क्योंकि उनको attention नहीं चाहिए, है ना। Conversation aggravates, right? तो
वार्तालाप नहीं करना है उनको. दे आर वेरी फस्टिडियस, estranged फैमिली फ्रॉम. मैंने बहुत सारे नेचुरल बच्चे देखे जो माँ बाप से इतने क्लोज नहीं है जितने फ्रेंड्स से हैं. अफेक्शन है, पर एक रूब्रिक है अफेक्शन डिमॉन्स्ट्रेट कैन नॉट. डिमॉन्स्ट्रेट मतलब ऐसा नहीं कि उनको प्यार नहीं है, पर उनको दिखाना नहीं आता. दे फील लिटिल ऑकवर्ड. आई हैड अ वेरी 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 क्लोज फ्रेंड इन माई कॉलेज लाइफ एंड आई हैव बीन ऑलवेज वेरी affectionate and I would show affection. I would hug and रात को उसको लेके. She's also a doctor now. So and she used to feel very awkward. It's not that she never had affections for me or for other friends, but she didn't know how to show it. So affection demonstrate cannot. उसको दिखाने नहीं आते वो affection. वो feel करता है, बहुत प्यार रहता है, पर वो दिखाना नहीं आता. ओके तो उसको डर रहता है कि लोग उस पर तरस ना खाएं. बट एट द सेम टाइम नेचुरल म्यूर कैन बी वेरी जेलस, वेरी एनवियस. बहुत सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं ना कि दूसरा जो बच्चा जिस टॉय से खेल रहा होता है ना, इसको वही चाहिए होता है. दूसरा इसके पास अपनी साइकिल है, पर दूसरे बच्चे के पास जो है ना, इसको वही चाहिए. या दूसरा बच्चे के पास जो टॉय है ना, इसको वही चाहिए. तो व्हाट इज द रूब्रिक? कम ऑन. व्हाट इज द रूब्रिक जिसको दूसरे के पास? दिस इज सो कॉमनली सेड. पता है क्या होता है, हमें ड्रग पिक्चर नहीं मिलती है. यही छोटे छोटी चीजें हमें आप ड्रग्स में से समझनी है जो हमें क्लिनिक में मिले. Are you understanding? And especially in kids, you will not see कि हर बच्चे की फैमिली में कोई डेथ होगी या ग्रीफ होगा, और ग्रीफ बहुत होगा और साइलेंट होगा और वो बहुत लंबे समय तक चल रहा होगा. ऐसे कितने नेट्रम्यूर बच्चे आपने देखे? हार्डली. So how will you pick? It is not envy. जो दूसरे बच्चे के पास चाहिए वो मुझे चाहिए. What it is? There is a direct rubric. Desires, full of desires. Other person is using which? What other person has? मैंने लिखा नहीं है rubric, but I have used it so many times. Desires, full of desires. Other person has which? Envy or jealousy तो है, but this is such a specific rubric. Are you understanding? तो बच्चों में एनवी होगी, जेलसी होगी, जो दूसरे के पास चाहिए है वो चाहिए. डिजायर्स, फुल ऑफ डिजायर्स. अदर पर्सन इज हैविंग विच? फस नहीं चाहिए. जोक, नेट्रम्यूर कैन नॉट टेक अ जोक. जोक नक्सवॉमिका भी नहीं ले पाता, राइट? मैंने नक्स ली है, अभी शायद नहीं ली है. मैं नक्स के भी बच्चे बताऊंगी. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड नक्स इन चिल्ड्रन, है ना? तो मजाक नहीं पसंद आता है इन लोग को, एंड दे गेट एंगर इजिली, राइट? और सबसे जो नेट्रम्यूर के मन पे दुख बैठ गया ना, वो बहुत सालों तक रहता है. वो घाव हमेशा क्या बोलते हैं उसको, फ्रेश रहता है, कि वो सूखता नहीं है घाव. वो अभी भी उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी दुख के साथ उनके अंदर रहता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दे, एज आई सेड, दे आर वेरी सीक्रेटिव, दे आर हाइडिंग, दे डोंट शेयर द इमोशन, राइट? ठीक है. एंड वन मोर थिंग, एक रूब्रिक है मैथ्स हॉरर ऑफ. कुछ बच्चे आते हैं ना, एक होता है मैथ इनएबिलिटी या कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी या इनएप्टीट्यूड फॉर, पर इसमें शायद 6 ही रेमेडीज हैं. मैथ्स हॉरर ऑफ. पेरेंट्स आते हैं, यार मैथ तो इसके लिए डरता है, भूत है मैथ्स इसके लिए. मतलब बहुत बच्चों को मैथ्स का फोबिया होता है. सो हैव टू, एक होता है कि मेरे से होती ही नहीं है, इनएबिलिटी है. एक होता है मेरे को तो भैया मैथ का फोबिया है, मैथ मत बोलो. सो मैथ हॉरर ऑफ.
Are you all aware of this rubric? See, chronic sadness, grief जो आप लिख रहे हैं sadness, ये आपको पता है. Try to understand what I am trying to tell you. कि आप ऐसे यूज कर पाए हैं ये, you know, आपने कि आंख बंद करके पेशेंट अपने इमोशंस बता रहा है और सिंगल नाट्रम है. यू नो दैट. इफ यू नो इट्स वेरी गुड, बट ट्राई टू सी दैट इन योर पेशेंट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो आंख बंद करके या दीवार की तरफ देख के या आंखों में आंसू भर रहे हैं और झलकने क्यों नहीं दे रहा है. इन सब से आप यू कैन पिक इट. ठीक है. तो मैथ्स इनेबिलिटी तो है, हॉरर है मैथ्स का. बहुत सारे लोगों में लर्निंग डिसेबिलिटी में भी ये ड्रग यूज की जाती है. देन देयर इज अ रूब्रिक टैसिटर्निटी ऑब्स्टिनेसी फ्रॉम, मतलब नई बात करनी है, जिद है, बस नई बात करनी, जिद पे अटक गए. नेचुरली में पहले हम देखते थे जिन लोग को गुस्सा आता है और फिर वो 4-4, 6-6 दिन बात नहीं करते, 1-1 महीना आपसे बात नहीं कर रहे. कुछ लोग होते हैं मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, अब मेरे जैसे लोग तो शाम तक बात कर लेंगे. आई कैन नॉट, मैं कभी भी किस डिस्प्यूट में नहीं रह सकती हूँ. तो दैट इज माई नेचर. कुछ लोग होते हैं कि वो एंगर 10-10 दिन, 15-15 दिन एक दूसरे से बात नहीं करते, तो लंबा चलता है उनका. टैसिटर्निटी ऑब्स्टिनेसी फ्रॉम, जिद है, बस अब हमें नहीं बात करनी. ईगो है, हर्ट है उतना, और उस पर ड्वेल करते रहते हैं. ड्वेलिंग ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अक्रेंसेस, उनको वो ब्रूडिंग, ग्रीफ, ये सब बहुत कॉमन है. बट एक और रूब्रिक मैं आपको बताऊंगी जो नेचुरल में आपको शायद ना पता हो. उसमें एक कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपनी ही बातें करने में मजा आता है कि मैं ऐसी, या मेरा ऐसा, या मेरी साड़ियाँ तो अच्छी होती हैं, या आई हैव दिस ज्वेलरी, सब लोग मुझे बोलते हैं, या अपनी ही बात कुछ भी, मेरा बेटा, मेरा बहू. तो देयर इज अ रूब्रिक टॉक्स प्लेजर इन हिज ओन, मतलब अपनी ही बातों में प्लेजर आना. इसमें शायद स्ट्रेमोनियम एंड नाट्रोम्यूर 2 ही ड्रग हैं या 3, आप देखिएगा. स्ट्रेमोनियम और नाट्रोम्यूर तो है. आई हैव गिवन टू सो मेनी पेशेंट्स, उनमें कोई ग्रीफ नहीं था, कोई कॉन्सोलेशन और पिटी का एग्रीवेशन नहीं था, बस वो आते थे और अपनी ही बातें करते रहते हैं. ऐसा लगता है इनको अपने बारे में. लुकेसिटी इज डिफरेंट. लुकेसिटी वाला बोलता बहुत है, वो आपके बारे में भी बोल लेगा, पड़ोसी के बारे में भी बोलेगा. इनको अपनी ही बातें करने में मजा आता है. टॉक्स प्लेजर इन हिज ओन टॉक, राइट. व्हाट इज अफेक्टेशन ऑफ नाट्रोम्यूर? जैसे हमने हायोसाइमस का पढ़ा कि मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता पर डर लग रहा होता है, या स्ट्रेमोनियम का अफेक्टेशन पढ़ा. वैसे नाट्रोम्यूर का अफेक्टेशन इज कि I don't cry, I don't feel that emotion, but actually they cry when alone, they cry, there's a lot of grief, right? I'm trying to make all my videos of 30 to 40 minutes so that it's easy, and I'm trying to tell all those things that you can pick up in your clinic and not theoretical कि नेट्रोम्यूर में ये है और वो सॉल्ट है तो एब्जॉर्ब कर ले, वो बहुत पढ़ा है. बट क्लिनिक में आप बच्चे या बड़े कैसे पिक करें वो आपको समझना है, राइट. सो आई जस्ट इट आउट एंड देन वील टेक द क्वेश्चंस. प्रॉपर, ओबीडियंट, डिसिप्लिन्ड, सिटिंग प्रॉपरली, प्रिकॉसिटी चिल्ड्रन इन आपको लगेगा वो मेच्योर हैं. लुक इवेडिंग, स्पोकन टू व्हेन, अटेंशन नहीं चाहिए, या तो दीवार की तरफ चले जाएंगे. पिक्चर अवर्स टू बी टेकिंग, वो नहीं चाहते कैमरा उनकी तरफ हो. अगर आप कैमरा, शाय, रिजर्व्ड, टिमिड, दे डोंट वांट दैट फस अराउंड देम. कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए, पिटी नहीं चाहिए. दर्द भी हो रहा है तो मम्मा, ओले बेटा देखो बहुत दर्द हो रहा है, नहीं. एडमोनिशन नहीं चाहिए. सीक्रेटिव होते हैं, अपने इमोशंस दिखाते नहीं हैं. वीपिंग कंट्रोल्ड होगी, आंखें बंद करके अपने इमोशंस कई बार आपकी हिस्ट्री देंगे. जैसे मेरी वाइफ से बहुत कल झगड़ा हो गया था और देन आई वाज नॉट फीलिंग गुड, और ये सारी बात वो आंखें बंद करके कर रहे होते हैं. ओके, सो all this. There are some rubrics that you can see in one case. जैसे desires, full of desires, women ideal women चाहिए उनको. भैया घर का भी करे, बाहर का भी करे, ससुराल वालों को भी संभाले, everything ideal जैसे होता है, इसमें नाट्रम है. फिर
there's a rubric discontented, reserved, displeasure. See, ये कुछ पॉइंटर्स हैं. अगर आप कोर की बात करें तो डिग्निटी है, पर कितने बच्चों में आपको कोर डिग्निटी दिखेगा, राइट? There is underlying dignity, but that I feel that more than core to है ही important, you have to understand how you will, that is what I'm saying probably this 5th time in this, how will you pick these patients in clinic? You know, I have read a lot and I study a lot. I'm so sorry, there was some net ka problem, so it got disconnected. So वो जो उनके बात करने के तरीके में, बैठने के तरीके में, देखने के तरीके में, आंखों में आपको समझ आए, you know, that is what I'm trying. Now we'll take quick 5 minutes questions. It's already been 30 minutes. There is so much more to natromute. There is so much. और मैंने कोशिश करके यहाँ pediatric angle बताया है. Adult का एक बहुत बड़ा अलग approach हो सकती है. Disappointment in love, death of loved ones, long-standing grief undermining the constitution, dignity, honor wounded. There is so much more. But my attempt over here is to tell you symptoms or the pointers that you can pick in your clinic. Right? Yeah, calculating inability तो है, horror है maths का. उसमें बहुत सारी drugs हैं, 6 हैं horror में, और inaptitude में, mathematics inability में तो शायद 20-26 हैं. See, whenever we give a medicine to someone, there is always a group of rubrics that you have taken, or one rubric which is all in all of the case. Yeah, they are image conscious people. See, envy क्या होता है? एक साइकोलॉजी की बुक पढ़ी थी मैंने, मॉर्गन एंड किंग करके, व्हेन आई जस्ट पास्ड आउट. उसमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया था एनवी और जेलसी का. एनवी होता है, उसमें एक फोटोग्राफ थी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे. तो एक बच्ची आइसक्रीम खा रही है और दूसरी बच्ची झूले पे बैठी है, एंड शी वाज लुकिंग एट दैट आइसक्रीम एंड सेइंग मुझे भी आइसक्रीम चाहिए. दिस इज एनवी. यू हैव इट, आई डोंट हैव इट, राइट? अब जेलसी जो दूसरी पिक्चर थी, वो दूसरी बच्ची आइसक्रीम खा रही है, ये बच्ची झूले पे बैठी है, वो जाती है, उस बच्ची को धक्का देती है, उसकी भी आइसक्रीम गिर जाती है. मेरे पास नहीं है, तेरे पास भी नहीं होनी चाहिए. So envy is only till a limit where you want that others have, and jealousy is one step ahead where you don't want the other person also to enjoy that, whatever it is. It can be a car, उसकी कार को ठक्कर मार देंगे या आइसक्रीम गिरा दी, so उसको भी नहीं होना चाहिए, you know, उनके साथ भी बुरा होना चाहिए. That kind of attitude is jealousy. Okay, and desire is a temporary thing. Today I may desire an ice cream and tomorrow may not, right? So desire is temporary. कि आज मेरी ये desire है, I want to travel today, right? Maybe after a travel I don't desire that, right? Sibling rivalry अलग है. Sibling rivalry जो आप पूछ रहे हैं, that is jealousy children in when newborn gets all the attention, जिसमें Ignatia and Hyoscyamus हैं. Yeah, good, you reminded me of that. There are some things in natrum that you can see जो हमें एलेंस्की नोट या बोगर पढ़ें, बोनिंग हुसैन पढ़ें, कि उनके इरप्शंस होते हैं एंड द मार्जिन्स ऑफ द हेड, ग्रीसी स्किन होती है, लोअर लिप हमेशा नहीं, मोस्टली क्रैक्ड होता है, डिलेड टॉकिंग रहता है इन बच्चों में, राइट? सॉल्ट की क्रेविंग रहती है. आई थॉट यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस. They always think लोग क्या कहेंगे उसके बारे में before doing anything. Yeah, image conscious होते हैं, opinion of others sensitive होते हैं. Any other? What is want? Want होता है, I'll give you an example. Naked wants to be. Want मतलब वो patient की अभी necessity बन गई है कि मैं naked होके ये सब बताऊं डॉक्टर को. मतलब मेरा want है ये. Are you understanding? कि मेरे को इतनी तकलीफ है, मुझे अभी नंगा होके सब डॉक्टर को बताना ही पड़ेगा. यू नो, आके वो लोग अपनी ड्रेस ऊपर कर लेंगे या पूरे कपड़े उतार देंगे, डॉक्टर देखो कितना बढ़ गया है. तो ये उसकी वांट है अभी, ये उसका बेसिक क्या बोलते हैं उसको, नीड है कि वो
नेकेड होए अभी, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ज़रूरी हो गया है. सो दैट इज़ वांट. और डिज़ायर होती है इच्छा. ओके. So I've been taking sessions on Zoom, and last time हमने जनवरी में 4 day session दिया, and thank you all for such an amazing response to all my Facebook live videos. I know I'm not being able to do so oftenly, but I will try to do it more often now. I am planning a 10 once in a week 10 weeks program probably, where we'll show pediatric or mostly pediatric, maybe adults also, some videos, and we will understand. जैसे मैंने इस बार कैल्केरिया के एंट्री पॉइंट समझाए कि आपको क्लिनिक में कैसे दिखेंगे. तो जैसे अभी आपको बताया कि नैट्रोम्यूर, हाउ टू पिक नैट्रोम्यूर चिल्ड्रन इन योर क्लिनिक, राइट? सो वी आर ट्राइंग टू शो सम बेसिक ड्रग्स and their application in your clinical practice, right? Now we are not, I hope all of you have passed and given result and now you're practicing. So now theoretical से भी ज़्यादा important अब क्या है कि आप उसको clinic में पहचान सकें, सही दवाई दे सकें और treat कर सकें. So probably from the 1st of March, I'm planning to start a 10-week program where once in a week we'll take sessions, maybe a Thursday night, or I think a Thursday night would be, and same time 8:30 to 10:30, and we'll charge around 2,000 rupees for that session. So 10 week होगा तो आपको basically आपको हर ड्रग जैसे जो बहुत कॉमनली आती है ना, जैसे पल्सैटला, इग्नीशिया, स्टैफिस, नाट्रोम्यूर, ओपियम, और बच्चों में जो बहुत कॉमन आती है ट्यूबिक्लिनम, टैरेंटुला, विरेट्रम, मर्क्सॉल, वो आप देख सकें और उनको पिकअप कर सकें. कि क्योंकि क्या होता है, आपको वहाँ थ्योरी नहीं लिखनी है क्लिनिक में, तो इतना लंबा लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं होता. आपको 15 चीज़ भी पता है ना जो मोस्ट कॉमनली आपको क्लिनिक में दिखने वाली हैं. इट्स डन, इट्स मोर देन इनफ, यू नो. ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, पल्सैटला, सीपिया एंड इग्नीशिया. थ्योरेटिकली आई कैन टेल यू सो मच, बट वन इम्पॉर्टेंट टिप, पल्सैटला को लाड़, प्यार, सिंपैथी सब पसंद है, राइट? सीपिया इज ऑल्सो वेरी इंडिपेंडेंट. सीपिया बच्चा क्लिनिक में पकड़ना बहुत अलग है नैट्रम से. इट्स, ये जो आप डिफरेंस बोल रहे हैं ना, ये अडल्ट में बहुत कॉमनली देखा जाता है. बच्चों में ऑनेस्टली आई एम नॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन पल्सैटला, सीपिया. दे आर वेरी वेरी डिफरेंट. सो ये डिफरेंस बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे भी डाला है, यू कैन रीड दैट. बट इन किड्स, you know, the way I said, it's really different, you know. चाइल्ड का जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा सिर्फ स्कूल, फ्रेंड्स, पढ़ाई, माँ बाप, इतना ही है वर्ल्ड. और बच्चों के केसेस में यू नो आपको ये वर्ल्ड अच्छे से समझना है, और इसी में झगड़े समझने हैं, इसी में जेलसी समझनी है. और सबसे अच्छी बात पीडियाट्रिक केसेस की ये है कि दे आर ऑनेस्ट, यू नो. इतना मैनिपुलेट, दो देख चिल्ड्रन कैन बी मैनिपुलेटिव, बट जो है वो दिखता है, यू नो. सो I feel the failures in pediatric cases are less. You have to listen to the parents less and observe to the child more. So the more you observe the child, the more you. आज ही मैंने just before this live 2 o'clock मैंने एक बैंगलोर की एक बच्ची का केस लिया. So innocently she was telling me everything, you know, just 10 minutes of case, and I was so sure of the remedy, because she was that innocence, you know, that natural, you know, that is beautiful in children. And you don't miss a remedy if you are well versed with materia medica. मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई थिंक जो मुझे फॉलो करते हैं वो बोर हो गए होंगे इस बात से कि दवाई को पेशेंट में मत डालो, पेशेंट को समझो. भले ही आपको रूब्रिक ना आते हो, कोई बात नहीं, पेशेंट का फील समझो आप, और फिर रूब्रिक मिल जाएगा, यू नो. It is not very difficult. If I can do, I'm not saying I cure all the patients. I have my own failures, I have my own struggles, but that desire to study and that desire to learn should be there, you know. आप हर केस को मदद करने की या हेल्प करने की इच्छा होनी चाहिए. वो हो या ना हो, वो सेकेंडरी है, यू नो. मैं नहीं कर पाई वो फेलियर, उसको मैं पढ़ूं और अगली बार वैसा केस आए और मुझे फेलियर ना हो, ये अलग बात है. पर मैं
अभी yesterday ही एक convulsion का case था जयपुर का, that learner's mind group, and that child was having convulsion after every 1 hour, and while I was doing a video call on WhatsApp, the child was having convulsion, and that family was at the verge of putting the child to a hospital. And then I reporterized, and then I told them the medicine, and full day that was playing on my mind, that I really don't want that child to hospital. That child had result, it's very good, but अगर नहीं भी मिलता तो वो हेल्प करने की इच्छा, वो पढ़ने की इच्छा आप सब में होनी चाहिए. That is all that I always tell all the people who are associated with me. I may have failed in hundreds of cases, but I would still study that much, whether it's physical, whether it's that I admit that I'm not very good in physicals and I should read physicals more. I'm not very good in nosodes. Mind is my forte because I have always studied mind, So probably from you all I can study physicals more. So you all have been really great. We started with just 10 people and now we are 3,400 people, which means a lot to me. I have never imagined that I could, be associated with so many doctors, and now it appears to be like a family. So, okay. So, yes. So, thank you. And who all wants to, be a part of that 10-week program can contact me. I think most of you know my number, but still I'll say 7875626071. You can search for me on Google or various other platforms, Facebook, YouTube. My name is Dr. Ruchi Shirurkar, and hope we have a learning experience, and I'll try my level best to do more often these Facebook lives. Okay, thank you so much.